ویئرز ہم اس وقت موجود ہیں اپنے گیسٹ کارنر میں، جہاں میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی. ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بزنس انالسٹ ہیں، نام ان کا صوفیہ شیخ ہے، اور بل گیٹس ملینیم اسکالرشپ ملی ہوئی ہے ان کو. بہت لکی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جہاں تک پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں اسکالرشپ پر. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی میں راہیں جو تعین کرتے ہیں اس کا راستہ ہمیں نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں. ٹیلنٹ ہر انسان میں ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انسان تخلیق کیا ہوگا جس میں ٹیلنٹ نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ بہت جلدی چل جاتا ہے اور وہ اسی طرح سے اپنے کیریئر کا انتخاب بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اور مائل سٹونز آگے کراس کرتے جاتے ہیں. تو آج ہم ملیں گے صوفیہ شیخ سے، ان سے بہت کچھ باتیں کریں گے. خاص طور سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے صوفیہ اس مقام تک پہنچی اور اتنا کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے. تو ملتے ہیں صوفیہ سے. السلام علیکم صوفیہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے. جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویئر سارے انتظار کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ صوفیہ نے اتنا کچھ اچیو کیسے کیا. جب میں چھوٹی تھی ہمیشہ میں بہت کام کرتی تھی، بزنس مائنڈڈ تھی اس وقت بھی. تو میرے پیرنٹس جب میرے ڈیڈ خاص طور انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں دلایا کہ میں لڑکی ہوں، کہ میں گھر کے صرف کام کروں. وہ کہتے تھے باہر کے بھی کام کرو، پڑھائی میں زیادہ وہ تو دھیان دو. تو آپ کے پاپا نے آپ کو بہت سپورٹ کیا؟ میرے فادر نے بہت سپورٹ کیا. جیسے میں نے کہا وہ کبھی احساس نہیں دلایا کہ میں لڑکی ہوں اور ہمیشہ کوکنگ کرو. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا تھا گھر میں؟ ڈسکرمنیشن گھر میں نہیں ہوتا تھا. جب میں کوکنگ وغیرہ کرتی تھی وہ تو پیسے دیتے تھے، انکریج کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اسی کام میں اپنا دھیان دو. وہ کہتے تو ایسے کام کرو جو تمہارے بھائی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو جب میں امریکہ موو ہوئی تھی تو یہی مینٹالٹی میری تھی کہ میں ادھر جا کے کام کروں گی. تو مڈل اسکول میں جب میں کتنے سال کی تھی اس وقت؟ تب میں 10 سال کی تھی. 10 سال کی عمر میں ادھر گئی تھی. 5th گریڈ شروع کیا تھا. تو مڈل اسکول جب میرا ختم ہوا بعد میں، تو اس کے بعد میں ہائی اسکول میں آئی. تو میں نے اسی وقت مجھے فور کاسٹنگ میں بہت دلچسپی تھی. میں ہمیشہ کہتی تھی کہ 4 سال بعد میں کیا کر رہی ہوں گی. تو میں نے کہا 4 سال بعد جب میں یونیورسٹی جا رہی ہوں گی تو میں نے اسکالرشپ پہ جانا ہے، میں نے انڈیپینڈنٹ وومن بننا ہے. میں نے اپنے پیرنٹس کی ہیلپ، وہ سپورٹ چاہیے ان کی، لیکن میں برڈن نہیں بننا چاہتی. تو پھر ہائی اسکول میں جب ہر کوئی میرے سارے دوست کھیل رہے ہوتے تھے، مستیاں کر رہے ہوتے تھے، میں اپنا مست کرتی تھی، بیلنس رکھتی تھی، کام بھی بہت کرتی تھی. اور جب کام ختم ہو جاتا تھا تو اسٹریس ریلیف کرنے کے لیے دوستوں سے باتیں ہو گئی، لیکن کام میں بہت دلچسپی دیتی تھی. تو میں نے اسپورٹس میں بہت کھیلتی تھی. باسکٹ بال کھیلتی تھی ادھر، اور پھر والی بال وغیرہ ہوتی ہیں ادھر. تو میں اور کلر کارڈ بھی ہوتا ہے جو بینڈ میں پھینکتے ہیں، فلیگز وغیرہ، وہ میں کرتی تھی. پھر آرکیسٹرا میں وائلن پلے کرتی تھی. وائلن اب تک آپ پلے کر رہی ہیں؟ نہیں، میں نے وہ کچھ کر دیا تھا. کیونکہ جب میں مڈل اسکول سے ہائی اسکول میں آئی تھی تو میں نے کہا اب کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں. میرے ایک چیز میں دھیان نہیں لگتا، تو میں کہتی ہوں ہر چیز نیو چیز ٹرائی کرنا چاہیے. تو میں نے وائلن 3 سال کے لیے پلے کیا تھا. اس کے بعد پھر میں بینڈ میں آ گئی تھی جس میں کلر کارڈ وغیرہ ادر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو میں چینج کرتی رہتی ہوں کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی اتنا زیادہ بہتر ہے، رائٹ؟ تو پھر میں ہائی اسکول میں جب کام کیا تو پھر گریجویشن کے وقت مجھے اپلائی اسکالرشپ کے لیے کرنا پڑا. اور پھر جب اس کے لیے 30 مجھے ایسز لکھنے پڑے تھے، لیکن اس کے بعد جب مل گئی تو اب یہ ساری میری یونیورسٹی کا پے ہوا تھا 4 سال کے لیے، انہوں نے پے کیا. اچھا، اس یونیورسٹی میں جو یونیورسٹی آف آسٹن ٹیکسس میں جو صرف 5 لوگوں کو اسکالرشپ ملی تھی، تو صوفیہ جو ہے از ون آف دیم. جی صوفیہ، یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑا آنر ہے یہ تو آپ کے لیے نا. یہ ہے، لیکن اس کا یہی تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو انکوائر نہیں کرتے تھے کہ کیا ہمیں مدد مل سکتی ہے. یہی ادھر کا یہ حساب ہے، اگر آپ چیزیں ڈھونڈو تو ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو قابل ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو کیا کیا مل سکتا ہے. تو اگر میں نے اپلائی نہیں کیا ہوتا تو کبھی بھی نہیں ملتی، لیکن اپلائی کرنے سے جو برڈن میرا ریلیو ہو رہا تھا. پچھلے 4 سال سے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مجھے پیسے آتے تھے اور میں سارا دھیان میرا اسٹڈیز میں تھا. تو یہ آپ کو بڑا فائدہ ملا آپ کی اپنی محنت سے. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے فادر جو ہے مائکروسافٹ کورسز کرواتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو کیا اس کی وجہ سے آپ کو بڑا شوق ہوا، گھر میں ایسا انوائرمنٹ ملا آپ کے، یا آپ کو خود سے ہی آپ نے سوچا ہوا تھا کہ اس فیلڈ میں آپ کو جانا ہے؟
हुआ ये था जब मैं कराची से गई थी, कराची में मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, मेरी एक पड़ोसन थी उसके पास कंप्यूटर था। तब मेरा बहुत शौक था, मैं कहती थी मुझे खेलने दो लेकिन वो खेलने नहीं देती थी। लेकिन जब अमेरिका गई थी उस वक्त मेरे डैडी पाकिस्तान में थे, वो 3 साल के बाद मूव हुए। लेकिन जब वो मूव हुए थे तब तक मैं मिडिल स्कूल में आ चुकी थी। मिडिल स्कूल में मैंने कोर्सेज कंप्यूटर के लिए थे, उस वक्त मेरे डैडी का इंस्टीट्यूट भी नहीं माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ था। तो आप वहाँ किसके पास थी? मैं अपनी मदर के पास थी और मेरी फैमिली उधर थी, लेकिन मेरे डैड पाकिस्तान में होते थे उस वक्त। तो फिर मैं कोर्सेज ले रही थी जिसके अंदर मैंने खुद एक बुक खरीदी HTML की, 13 साल की थी, और ख़ुद वेब पेज बनाना सीखा। तो फिर डैड जब हमारे 3 साल के बाद मूव हुए तो मैंने उनको पहले तो कहा आप प्लीज़ कंप्यूटर एक मुझे दिलाएं, क्योंकि मैं कोर्सेज ले रही थी। और फिर ऐसे ही मैंने खुद लर्न किया था, और फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कोर्सेज करवाने शुरू किए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी करती हूँ, क्योंकि उस वक्त एट दैट टाइम मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था। फिर मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गई, लेकिन उस वक्त मैं कह रही थी जब यूनिवर्सिटी में जाऊंगी कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगी। तो उसके लिए आपके पास अगर जितनी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस होती हैं उतना ज़्यादा आपको जैसे पे मिलता है और उतनी ज़्यादा बेटर आपके रेज्यूमे पे लगता है। तो मैं ये प्लान आउट करी थी, लेकिन फिर जब यूनिवर्सिटी में पहुंची तो मैंने थोड़ा सा डाइवर्जन ले ली फाइनेंस के ऊपर। सोफिया जो है व्यूअर्स, 15 ईयर्स की एज में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर कोर्स किया, जो कि मेरे ख्याल है कि इतनी यंग एज में मैं वन ऑफ द यंगेस्ट थी उस वक्त। और आपको मैं वो नंबर बताती चलूँ जहां आप खुद सोफिया से बातचीत कर सकते हैं, 26333154 26333154। और आज हमारे बच्चे भी जो हैं उनको भी हम वेलकम करेंगे कि वो भी हमें कॉल करें, सोफिया से बातें करें और ख़ुद पूछें सोफिया से कि वो क्या ऐसी एक फोर्स थी जो कि उनको इतना आगे बढ़ने में हेल्प की। सोफिया हमें भी बताएं कि क्या आपको क्या इनकरेजमेंट मिली, फैमिली से मिली, आपको खुद आप जीनियस अपने आप को समझती हैं, क्या ऐसी कोई फोर्स थी जिसने आपको इतना कुछ करने पर मजबूर किया? जैसे मैंने बताया, डैड तो हमेशा ही कहते रहते थे कि आप इंडिपेंडेंट बनो, और अम्मी भी ऐसी। मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जिनमें लड़कियों पे इतना प्रेशर होता है कि आप घर के काम करो, कुकिंग करो। पढ़ नहीं सकती वो इतना, क्योंकि प्रेशर ही इतना होता है, उनको घर का काम भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। मेरी फैमिली में ये था, वो अंडरस्टैंड कर सकते थे कि अगर काम करने पे मैं आऊँ तो बहुत अच्छा काम करती हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ, हर चीज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरी ये है, ज़्यादातर नहीं करती, लेकिन जब आता है टाइम आता है करने का तब मैं करती हूँ। तो इसलिए वो फोर्स नहीं करते थे, मैं जो करती थी तो वो सपोर्ट करते थे जैसे। और जब मैं गुड ग्रेड्स लाती थी वो इनकरेज करते थे, हाँ पढ़ो। कुछ बहुत लोग ऐसे थे जो वो क्रिटिसाइज़ करते थे मेरे पेरेंट्स को कि आपकी बच्ची को तो कुछ आता नहीं है, ना वो कुकिंग करती है ना घर के काम करती है। लेकिन मेरे पेरेंट्स का हमेशा यही आंसर रहा था कि वो जब करती है बहुत अच्छा करती है, लेकिन वो अभी पढ़ रही है तो उसे पढ़ने दो, वो कुछ और बनना चाहती है, हमेशा घर का काम जब करना होगा करती रहेगी। तो मेरी यही थी, अगर मैं जैसे काम ज़्यादा करूँगी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी घर का काम करने की। तो क्या फ़ायदा है घर का काम करना है, इससे अच्छा मैं मतलब लड़कियों को पढ़ना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए पेरेंट्स को कि सिर्फ अपने बेटों को पढ़ाएं, है ना? बिल्कुल सही। मुझे लड़कियों को तो ज़्यादा करना चाहिए कि वो पढ़ें, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी होती है कि शादी के बाद आपने बच्चों की टेक केयर करनी है, लेकिन आपके पास इतनी स्ट्रेस हो जाती है कि अगर आप कुछ और साइड पे काम कर रहे हो तो आप हेल्दी भी रह सकते हैं। सही। और अपने बच्चों की भी देखिए हम कितनी अच्छी तरबियत कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट में। अगर माँ पढ़ी लिखी होती है और बहुत कुछ जानती है तो बच्चों में सारी चीज़ें इंडक्ट करती है ना। बिल्कुल। जितना आपको पता होगा उतना आप अपने बच्चों को बताएंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने इसलिए मुझे फोर्स नहीं किया था कि काम करके करो, ज़्यादा अपनी एजुकेशन में ध्यान दो। तो इसलिए मैं इधर पहुँची हूँ। अगर वो उन्होंने शुरू से ये नहीं किया होता तो मैं भी ज़्यादा घरेलू काम करती और अपने एजुकेशन वगैरह करती। अच्छा, आपने टेक्सास से BBA किया है? टेक्सास से BBA किया है, और जो मेरी यूनिवर्सिटी है नंबर 5 करती है रैंक पूरी नेशन में, US में फाइनेंस में। तो आप फिर फाइनेंस की तरफ कैसे चले गए आप एकदम से? जब मैं कंप्यूटर्स करी थी तो यूनिवर्सिटी में आई, और फिर मुझे डिसीजन लेनी पड़ी कि मैं MIS करूं कि फ़ाइनेंस करूं। तो उस वक्त मैंने सोचा, मैंने
कंप्यूटर्स की तो नॉलेज है और कंप्यूटर्स ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी बुक उठा सकते हो और ख़ुद को टीच कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेज़ किए थे बहुत 3-4 एग्ज़ाम्स तो ऐसे थे जिसके अंदर मैंने ख़ुद बुक पढ़ी थी और ख़ुद ही एग्ज़ाम दिए थे, तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ और ट्राई करते हैं जो मैं ख़ुद अपने आप को टीच नहीं कर सकती, वो लर्न करती हूँ यूनिवर्सिटी में, ताकि मुझे MIS की भी नॉलेज हो जाए, फाइनेंस की भी नॉलेज हो जाए, क्योंकि मैंने उधर जॉब्स की हुई हैं। तो कुछ जॉब्स में ऐसा हुआ था कि जब मैं काम कर रही थी, जॉब मेरी जैसे क्लर्क की जॉब थी, जैसे डेटा एंट्री हो गई वगैरह, लेकिन जब वो उनका कंप्यूटर स्टक हो जाता था वो आके मुझसे पूछते थे कि आप क्या कर रही हो। तो आपको जितना पता होगा उतनी आपकी ज़्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और इतनी जल्दी आप आगे निकल सकते हैं अपनी अच्छा फील्ड में। सोफिया, आप जो आपको देखने वाले हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपसे वो लेना चाहें गाइडेंस, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? किस तरह से कोई भी स्कॉलरशिप ली जाती है, क्या उसके प्रोसीजर होता है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं? स्कॉलरशिप का ये होता है कि पहले तो वो पूछते हैं कि आप में क्या है जो दूसरे लोगों में नहीं है, आप क्या कर सकते हैं जो अदर स्टूडेंट्स नहीं, आप क्यों डिज़र्व करते हैं ये स्कॉलरशिप। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप अपने ग्रेड्स अच्छे रखें और आपकी बैलेंस होनी चाहिए। यही नहीं कि आप हमेशा पढ़ते रहें, आपको ये भी दिखाना पड़ता है कि आप स्पोर्ट्स में हैं, आप म्यूज़िक करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर कितनी है। तो आप ये करेंगे तो उनको स्कॉलरशिप्स के लिए मेरा ख्याल है वेल राउंडेड पीपल चाहिए होते हैं, जो हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए। तो वही मुझ में था, तो इसलिए स्कॉलरशिप मिल गई। और यही होता है कि स्कॉलरशिप के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया स्कॉलरशिप्स तो बाहर हैं, देयर आउट देयर, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे नहीं तो आपको मिलेंगी नहीं, तो आपको खुद ही ना मालूम करना पड़ता है इन चीज़ों का। और जैसे मेरे डैड ने कहा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कुछ भी मिल सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम possible. Right, exactly. Let's take a break. नेस्वीटा में है कैल्सीलॉक, यानी कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स का मुनफरिद कॉम्बिनेशन। कैल्शियम बोन्स में लॉक, जिससे बोन्स हो स्ट्रॉन्ग। अब चलें, सब लॉक हो गया। कैल्सीलॉक लगा लो। नेस्वीटा में है आम दूध से 50% ज्यादा कैल्शियम, क्योंकि इसमें है कैल्सीलॉक, यानी कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स का मुनफरिद कॉम्बिनेशन। कैल्शियम बोन्स में लॉक, जिससे बोन्स हो स्ट्रॉन्ग, और फैट 1% से कम, जो रखे आपको स्मार्ट। अब सब लॉक है। नेस्वीटा कैल्सीलॉक, बोन्स स्ट्रॉन्ग। टूटते बालों की टेंशन, नया सनसिल्क लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग सोया न्यूट्रिएंट्स और जिनसेंग के कुदरती खूबियों के साथ आपके कमजोर बालों को बनाए मजबूत और सिर्फ 4 हफ्तों में उनके टूटने को 90% कम कर दे। खुद ट्राई करके देखें। नया सनसिल्क लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसा तो नहीं कि दिन रैन तोरे बिना ना लागे जिया
थिएटर, हफ्ता शब 10 बजे। मोहतरमा, मैं डॉक्टर हूँ, आप मुझसे अपनी बीमारियाँ डिस्कस करें। चौधरी का चांद हो। अरे डॉक्टर साहब के पास सोचने वाला पेशेंट आता ही किधर है? आप क्या चाहती हैं मुझसे? 203 फिल्मों की हीरोइन हूँ, नंबर 1, आपको पता ही नहीं चला। इन्हीं आंखों के लिए बदली है ना आपने ये आंखें। 24 कैरेट असली किस्म का जहर इनायत कर दिया। किस किस्म की पेशेंट हैं आप? सेलेक्टेड किस्म। तुम मुझे लोग माधुरी माधुरी क्यों कहते हैं? किल किल क्लिनिक, बुध शब 7:35। This time check is brought to you by Wazir Ali Industries, manufacturers of Talo Banaspati and Talo Cooking Oil. तलो कुकिंग ऑयल के 5 लीटर टिन पर 50 रुपए की हैरत अंगेज बचत। वेलकम बैक व्यूअर्स। और सोफिया शेख हमारी हैं आज की गेस्ट। सोफिया बिजनेस एनालिस्ट हैं और बिल गेट्स मिलेनियम स्कॉलरशिप मिली हुई है उनको। वो अपनी ज़िंदगी में जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और सोफिया से हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से सोफिया को स्कॉलरशिप मिली, किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है, क्योंकि बाहर ममालिक में तो बच्चों को स्कूल्स में ही लिस्ट दी जाती है और बताया जाता है कि ये स्कॉलरशिप्स जो हैं अवेलेबल हैं, इनके लिए आप ट्राई करें और ये तरीक़ेकार होता है। शायद हमारे स्कूल्स में इतना अच्छी तरीके से गाइड नहीं किया जाता। तो सोफिया से पूछेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाने से हमें ये पता चल सकता है, क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं जो हमारे एक स्टूडेंट को लेना चाहिए कि